ہم سب زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہیں اٹکے رہ جاتے ہیں جہاں سب کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی عام انسانی کشمکش ہے۔ ایک طرف تو ہمیں تحفظ چاہیے، سکون چاہیے، ہاں، اور دوسری طرف ترقی بھی کرنی ہے، اور اکثر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کھینچتے ہیں۔ تو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محفوظ جگہ ہے، وہ انجانے میں قید بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک نادیدہ پنجرہ، جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب نے اپنے مضمون میں کہا ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر بروہی صاحب کا مضمون ہے اطمینان کا نادیدہ پنجرہ، دی انویزیبل کیج آف کنٹینٹمنٹ۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی تحقیق کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ آرام دہ حلقہ یا کمفرٹ زون آخر ہے کیا چیز۔ یقیناً، اور یہ بھی کہ یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتا ہے، کن پہلوؤں پر، اور ظاہر ہے سب سے اہم بات کہ ڈاکٹر بروہی اس سے نکلنے کا کیا راستہ بتاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن بھی ہے اور کیوں ضروری ہے؟ ڈاکٹر بروہی کی ایک مثال مجھے بہت دلچسپ لگی۔ وہ کہتے ہیں یہ آرام دہ حلقہ نا سرد رات میں گرم کمبل جیسا ہے، بہت سکون دیتا ہے، محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ جی، لیکن وہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی کمبل اگر ہم محتاط نہ ہوں تو ہمارے خوابوں کا، ہمارے عزائم کا گلا گھونٹ سکتا ہے، ہماری جو تخلیقی صلاحیت ہے اسے زنگ لگا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آئیے اسی کمبل کی گرمائش اور اس کے چھپے ہوئے خطرات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر بروہی کے مطابق یہ حلقہ ہے کیا اصل میں؟ ہاں، وہ اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر بروہی واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، کوئی جیل کی دیواریں نہیں ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ نفسیاتی کیفیت مطلب ذہن کی حالت؟ جی بالکل، ہمارے ذہن اور ہمارے جذبات کی ایک حالت۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ذہنی اور جذباتی سرحدیں ہیں۔ ان سرحدوں کے اندر انسان خود کو محفوظ سمجھتا ہے، سب کچھ مانوس لگتا ہے، قابو میں لگتا ہے، کوئی چیلنج نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے کہا اس آسانی کی قیمت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بات ہے ترقی کا رک جانا، نشو نما کا رک جانا، کیونکہ اس دائرے میں کوئی نئی مشکل نہیں آتی، کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں ہوتی، تو سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا عمل تقریباً سمجھیں ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر بروہی یہی کہتے ہیں کہ یہاں خوف نہیں ہوتا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہاں اصل ترقی بھی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل وہی کمبل والی بات ہے، گرم تو رکھے گا پر آپ ہل جل نہیں سکتے، کچھ نیا نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، دماغ شاید فطرتاً آسانیاں ہی ڈھونڈتا ہے نا؟ بالکل، ہمارا دماغ پروگرام ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ مانوس چیزوں، پرانی عادتوں کو پسند کرتا ہے۔ بے چینی یا غیر یقینی صورتحال کو وہ ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانا بچاؤ کا نظام ہے۔ لیکن ڈاکٹر بروہی کا زور اس بات پر ہے کہ اسی بے چینی میں ہی اصل راز چھپا ہے۔ جی، ان کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اصل سیکھنا، نئی سوچ، جدت درازی اور ذاتی ترقی، یہ سب کچھ تبھی شروع ہوتا ہے جب ہم اس بے چینی کا سامنا کرنے کی ہمت کرتے ہیں، جب ہمارا ذہن مجبور ہوتا ہے کہ وہ غیر متوقع حالات کو سمجھے اور خود کو ان کے مطابق ڈھالے۔ وہ ایلینور روزویلٹ کا کال بھی تو ہے، ہر روز کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو۔ ڈاکٹر بروہی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بالکل، اور اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی بنائی ہوئی محفوظ دیواروں کے اندر قید ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم میں کتنی ہمت ہے، کتنی صلاحیت چھپی ہوئی ہے۔ صحیح۔ آرام کے دائرے سے باہر جب پہلا قدم ہے نا، وہی دراصل خود کو جاننے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو یہ صرف ہماری اندرونی نفسیات کا معاملہ نہیں، ڈاکٹر بروہی اس کے دائرے کو کتنا وسیع دیکھتے ہیں۔ یہ آرام دہ حلقے کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟ ڈاکٹر بروہی اسے کئی سطحوں پر دیکھتے ہیں۔ پہلی سطح تو یہی نفسیاتی ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے، یعنی فرد کا اپنا ذہن جو سکون چاہتا ہے، اور دوسری طرف ترقی کی ضرورت جو بے چینی مانگتی ہے۔ اور سماجی سطح پر، معاشرے میں؟ سماجی سطح پر اس کا اثر بہت گہرا اور پھیلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں یہ ہمارے کیریئر کے فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ لوگ اکثر محفوظ نوکریوں کو چیلنج والے کام پہ ترجیح دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جانی پہچانی ہے۔ یہ ہمارے رشتوں میں نظر آتا ہے۔ کئی بار ہم ایسے رشتوں میں پھنسے رہتے ہیں جو شاید ہمارے لیے اچھے نہیں، لیکن چونکہ وہ مانوس ہیں، ہم تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ اور نظریات اور عقائد میں بھی؟ جی ہاں بالکل، ہمارے عقائد، ہمارے سیاسی یا سماجی نظریات، وہ بھی ایک آرام دہ حلقہ بن سکتے ہیں جب ہم ان پر سوال اٹھانے سے ڈریں یا کوئی مختلف زاویہ دیکھنے سے گھبرائیں۔ یعنی یہ صرف ذاتی مسئلہ نہیں رہتا، یہ اجتماعی رویہ بن جاتا ہے؟ یقیناً،
डॉक्टर ब्रूही माशरों की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं जो माशरे इज्तमाई तौर पर मतलब मिलजुल कर सवाल करने से घबराते हैं, नए ख्यालात को शक से देखते हैं या तब्दीली से डरते हैं, वो एक तरह से जामिद हो जाते हैं, फिक्री जमूद का शिकार। और जो कबूल करते हैं, उनके मुकाबले में वो मुआशरे जो बेचैनी को कबूल करते हैं, जो बहस की हौसला अफजाई करते हैं, जो नए तजर्बात से नहीं डरते, वो मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं, इर्तिका पजीर होते हैं। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब अफराद की तरह पूरे पूरे मुआशरे भी अपने आरामदेह हलकों में फंस सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और यहाँ डॉक्टर ब्रोही एक और बड़ा दिलचस्प सकाफती पहलू सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि कई मुआशरों में, खास तौर पर तरक्की पजीर मुमालिक में, ये आरामदेह हलके अक्सर रवायात या रस्म रिवाज का नाम ले लेते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखें, रिवायात का एहतराम जरूरी है अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर ब्रोही का नुक्ता ये है कि जब ये एहतराम इतना बढ़ जाए कि वो सवाल करने, तनकीदी नजर डालने या वक्त के साथ बदलने की राह में रुकावट बन जाए, तो फिर यही रिवायात एक इज्तिमाई आरामदेह हल्का बन जाती हैं। मतलब ये कि रिवायत परस्ती अगर सोच को जामिद कर दे तो वो भी तरक्की रोक सकती है। जी बिल्कुल। जब वो तनकीदी सोच और इर्तिका का रास्ता ही बंद कर दे। डॉक्टर ब्रोही इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अपनी सकाफती जड़ों का एहतराम करते हुए भी उन पर सेहतमंदाना गौर व फिक्र करना मुमकिन भी है और जरूरी भी। तो असल तवाजुन की जरूरत है। जी, असल तरक्की इसी तवाजुन में है कि माजी से भी जुड़े रहें और मुस्तकबिल के तकाज़ों को भी समझें। अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, नफ्सियाती, समाजी, सकाफती, तो लगता है ये सब एक दूसरे को मजबूत करते हैं। मतलब मुआशरे में जो नॉर्मल समझा जाता है वो हमारे जाती डर को और पक्का कर देता है। बिलाशुबा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर ब्रोही का बुनियादी पैगाम यही निकलता है कि इर्तिका चाहे फर्द का हो या मुआशरे का हो, वो बेचैनी को कबूल किए बगैर मुमकिन ही नहीं। हमें उस बेसुकूनी को दुश्मन नहीं समझना बल्कि उसे तरक्की का जीना समझना है। ठीक है, अगर ये इतना जरूरी है तो फिर हम में से ज्यादातर लोग इस दायरे से बाहर निकलने में इतनी मुश्किल क्यों महसूस करते हैं? हम क्यों फंसे रहते हैं? डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक असल रुकावटें क्या हैं? ये बहुत अहम सवाल है और डॉक्टर ब्रूही इसकी तफसील में जाते हैं। वो चंद बड़ी रुकावटों का जिक्र करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे ताकतवर वो है नाकामी का खौफ। हाँ, ये तो बहुत आम है। जी, हम गैर यकीनी नतीजों से घबराते हैं, चाहते हैं कि बस वही काम करें जिसमें कामयाबी पक्की हो, कोई खतरा ना हो, और इस चक्कर में कितने ही मौके ज़ाया कर देते हैं। यानी नाकामी का सिर्फ ख्याल ही हमें कोशिश करने से रोक देता है, चाहे कामयाबी का इम्कान भी हो। बिल्कुल। दूसरी बड़ी रुकावट है मामूल से, रूटीन से बहुत ज्यादा लगाव। हमारी रोज की आदतें, हमारा तर्ज जिंदगी, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी पहचान बन जाता है। हमें लगता है बस हम तो ऐसे ही हैं। सही। अब इस हालत में कोई भी तब्दीली, चाहे वो बेहतरी की तरफ ही क्यों ना हो, हमें ऐसे लगती है जैसे हम अपना कोई हिस्सा खो रहे हैं, अपनी शनाख्त का कोई टुकड़ा। ये एक जज्बाती नुकसान महसूस होता है। ये मामूल से लगाव वाली बात तो बहुत बहुत जानी पहचानी लग रही है। तीसरी रुकावट क्या बताते हैं वो? तीसरी रुकावट हमारे आसपास के लोगों से, समाज से जुड़ी है। डॉक्टर ब्रोही कहते हैं कि माशरा अक्सर उन लोगों को सराहता है जो भीड़ के साथ चलते हैं, जो सबकी तरह करते हैं, कन्फॉर्मिटी। अच्छा। अब जो लोग जरा हटकर सोचते हैं, पुराने तरीकों को चैलेंज करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर तनकीद का सामना करना पड़ता है, कभी मुखालिफत, कभी मजाक। ये सामाजिक दबाव भी हमें अपने महफूज दायरे में कैद रखता है। यानी लोग क्या कहेंगे वाला खौफ, ये भी एक पिंजरा है। यकीनन। और एक आखिरी रुकावट जिसका डॉक्टर ब्रोही खास तौर पर जिक्र करते हैं, वो है जहनी थकावट, या जिसे वो तज्जियाती फालिज कहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। वो क्या है? वो ये कि कभी कभी हम किसी नए कदम के मुमकिना खतरात, मुश्किलात, क्या गलत हो सकता है, उस सब के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, इतने पहलुओं का जायजा लेते हैं कि अमल करने की हिम्मत ही नहीं रहती, तवानाई खत्म हो जाती है। अच्छा, यानी सोचते ही रह जाते हैं। जी, हद से ज्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग हमें अमली कदम उठाने से रोक देती है। ये सब मिलकर तो वाकई एक बहुत बड़ा नफ्सियाती बोझ बन जाता है। नाकामी का डर, अपनी पहचान खोने का खौफ, समाजी दबाव और फिर अपनी ही सोचों में उलझ जाना। वाकई ये एक नादीदा पिंजरा ही महसूस होता है। दर हकीकत। और अहम बात यह है कि ये खौफ, ये डर अक्सर हकीकत से कहीं बड़े होते हैं।
नाकामी का खौफ असल खतरे से ज्यादा बड़ा होता है। मामूल की तब्दीली को शनाख्त से जोड़ना एक वहम है, और समाजी असूल जो शायद इस्तेहकाम के लिए बने हों, अक्सर हमारे ज़ाती खौफ को बढ़ावा दे देते हैं। जब सब एक तरफ जा रहे हों तो दूसरी तरफ कदम उठाने के लिए वाकई बहुत हिम्मत चाहिए। तो फिर इस पिंजरे का दरवाजा कैसे खुले? इस कैद से आजादी कैसे मिले? क्या डॉक्टर ब्रोही कुछ अमली रास्ते भी बताते हैं, कुछ हल? जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ उनकी तहरीर बहुत अमली और उम्मीद दिलाने वाली हो जाती है। वो सिर्फ मसला बताकर नहीं छोड़ते, बल्कि उससे निकलने की हिकमत अमली भी बताते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है वो हिकमत अमलियाँ? सबसे पहली हिकमत अमली है खौफ को देखने का अंदाज बदलना, उसे असर नौ समझना। वो कैसे? डॉक्टर ब्रोही कहते हैं कि खौफ को खतरे की निशानी न समझें, इसे तरक्की का इशारा समझें। जब आपको किसी नए काम से, किसी अनजान सूरत हाल से डर लगे, तो समझें कि आप अपने आरामदेह हल्के की सरहद पर हैं और तरक्की इस सरहद के पार ही है। यानी खौफ को दुश्मन नहीं, एक गाइड समझना। एक तरह से, जी हाँ। दूसरी हिकमत अमली है आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम बेचैनी को अपनाना। एकदम से छलांग न लगाएं, छोटे छोटे काबिले बर्दाश्त कदम उठाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपको नए लोगों से मिलने में झिझक होती है, तो रोजाना सिर्फ एक अजनबी से सलाम दुआ कर लें या मौसम का हाल पूछ लें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग को थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल का आदी बनाएं। ये बतदरीज मुवाफिकत जहन को तैयार करती है। ठीक है, तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है नाकामी को एक उस्ताद समझना। डॉक्टर ब्रोही कहते हैं कि जब नाकामी हो तो हिम्मत हार के बैठ ना जाएं, पीछे ना हटें, बल्कि रुकें और तज्जिया करें। ईमानदारी से देखें कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और इससे क्या सीखा जा सकता है। नाकामी से भागे नहीं, उससे सीखें। ये रवैया बदलना आसान नहीं होगा, पर अहम है। चौथी हिकमत अमली है अपनी सोबत पर तवज्जो देना। ऐसे लोगों में उठे बैठें जो आपको चैलेंज करें, जो आपकी हौसला अफजाई करें कि आप अपने दायरों से बाहर निकलें। ऐसे दोस्त, साथी या उस्ताद तलाश करें जो खुद भी आगे बढ़ने की सोच रखते हों और आपको भी हिम्मत दिलाएं। डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक हमारी सोबत हमारी हिम्मत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और आखिरी हिकमत अमली, पांचवी और शायद सबसे बुनियादी हिकमत अमली है अपने मकसद को याद रखना। आपका पर्पस क्या है? आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? आपके ख्वाब क्या हैं? अच्छा, जब आपका मकसद, आपका क्यों वाज़े होगा, तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि इस क्यों के लिए वक्ती आराम कुर्बान करना पड़ सकता है। बड़ा मकसद छोटी बेचैनी बर्दाश्त करने की ताकत देता है। अगर इन सब हिकमत अमलियों को मिलाकर देखें तो ये असल में हमारे अंदर जो बेचैनी और गैर यकीनी का एक कुदरती डर है ना, उसे शऊरी तौर पर बदलने की कोशिश है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये एक फाल रवैया अपनाने की दावत है। बजाय इसके कि हम हालात का शिकार बने, हम अपने रद्द अमल को खुद कंट्रोल करें। हाँ, जैसे छोटे कदम नफ्सियाती लचक पैदा करते हैं। जी, और नाकामी पर गौर करना इसे सिर्फ एक बुरी याद नहीं रहने देता, बल्कि सीखने का जरिया बना देता है। और एक ऐसा माहौल जो आपको सहारा भी दे और चैलेंज भी करे, वो आपकी तरक्की को कई गुना बढ़ा सकता है। तो डॉक्टर ब्रोही की ये हिकमत अमली हमें सिखाती हैं कि हम अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, उन नादीदा पिंजरों से निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो इस सारे गुफ्तगू का खुलासा क्या है? अगर हमें डॉक्टर ब्रोही के मजमून का निचोड़, मरकजी ख्याल चंद जुमलों में बताना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल में बुनियादी पैगाम ये है कि जिसे हम आरामदेह हल्का समझकर उससे चिमट कर बैठ जाते हैं, वो असल में तहफ़्फ़ुज़ तो देता है, लेकिन हकीकी इत्मीनान नहीं, असल खुशी नहीं। सही। असल तरक्की, असल जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां आपका आराम खत्म होता है। डॉक्टर ब्रूही हमें याद दिलाते हैं कि तारीख में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, रहनुमा, मुफक्किर, मौजिद, मुस्लिहीन, इन सब ने कभी न कभी अपने आरामदेह दायरे से बाहर कदम रखा था। और उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो डरते नहीं थे, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई बड़ा मकसद था, कोई ऐसी लगन थी जिसने उन्हें खौफ पर काबू पाने की हिम्मत दी। बिल्कुल यही बात है। और ये भी कि तब्दीली कभी आरामदेह नहीं होती, आसान नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ आराम में रहते हुए कभी कोई हकीकी तब्दीली भी नहीं आती। यही वो तजाद है जिसे समझना जरूरी है। जी, आराम हमें महफूज रखता है, पर हमारी सलाहियतों को भी कैद कर देता है, और मकसद ही वो चाबी है
जो इस कैद का ताला खोल सकती है। डॉक्टर ब्रोही के आखिरी अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। मैं चाहूंगी कि हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम उन्हीं अल्फाज पर करें जो उन्होंने लिखे हैं। जरूर। इंसान महफूज रहने के लिए नहीं बनाया गया, वो जिद्दोजहद करने, सीखने और बुलंद होने के लिए तख्लीक किया गया है। आराम मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जेपन का मीठा जहर है। हिम्मत अजमत की दवा है। बाहर कदम रखें, इसलिए नहीं कि दुनिया मुतालबा करती है, बल्कि इसलिए कि आपकी अपनी रूह सरगोशी करती है कि आसानी की इन दीवारों से परे बहुत कुछ है। याद रखें, आरामदा हल्का जिस्म की हिफाजत करता है लेकिन रूह को कैद करता है। आज़ादी तब शुरू होती है जब आप मकसद के हुसूल में बेचैनी महसूस करने की हौसला करते हैं। वाकई बहुत गहरे अल्फाज हैं और अमल पर उकसाने वाले। और शायद डॉक्टर ब्रोही के इसी मतन की रोशनी में सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच, एक सवाल छोड़ा जा सकता है। वो क्या? वो ये कि वो सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा आरामदेह हल्का क्या है, बल्कि इससे एक कदम आगे जाएं और ये गौर करें कि खुद आराम का तसव्वुर, जिसे डॉक्टर ब्रोही मीठा जहर कह रहे हैं, हाँ, वो किस तरह गैर महसूस तरीके से हमारे रोजमर्रा के फैसलों को, हमारी ख्वाहिशात को, हमारी जिंदगी की सिमत को कंट्रोल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आराम की तलाश ही अनजाने में हमारी जिंदगी में वो नादीदा हदें बना रही है जिनका जिक्र डॉक्टर ब्रोही करते हैं। कहीं सुकून की ये मुसलसल ख्वाहिशी हमें उन तजर्बात से, उन चैलेंजेस से दूर तो नहीं रख रही जो हमारी असल तरक्की और खुद को पहचानने के लिए ज़रूरी हैं।